is credit creation by a commercial bank or credit creation by a bank, right? Now what is this credit creation, right? As we have done the studied about the commercial banks and its functions, right? So credit creation इसके primary functions में ही आता है, right? Accepting deposit lending के बाद इसके जो तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा था दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, राइट? सो दिस इज द फंक्शन जो कि कमर्शियल बैंक्स को बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सेपरेट करता है, राइट? एंड ये जो क्रेडिट क्रिएशन है इट इज सिंपली द एक्सपेंशन ऑफ द डिपॉजिट्स, राइट? सो जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो डिपॉजिट्स बढ़ती हैं, डिपॉजिट्स की के नंबर्स बढ़ते हैं, right? in the bank or in the banking system as a whole. ये deposits creation जब होता है that is credit creation और expansion of deposits जब होता है that is credit creation. So commercial banks जो है credit create करती है in various ways, right? So मैं बोल रही थी कि commercial banks जो है credit creation करने के लिए वेरियस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन या फिर डिपॉजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बैंक्स में होता है और ये जो लेंडिंग है वो इंडिविजुअल्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट सभी को, किसी को भी हो सकती है ये लेंडिंग्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, राइट? एंड दैट इज डन आउट ऑफ द डिपॉजिट which has been accepted by the bank through the public के पास से जो डिपॉजिट्स आया है उस डिपॉजिट से ये क्रेडिट क्रिएशन होता है. सो आउट ऑफ दैट डिपॉजिट इट कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, राइट? वो रिजर्व्स रखने के बाद, वो रिक्वायर्ड रिजर्व रखने के बाद फिर वो जो एक्सेस मनी होती है या एक्सेस रिजर्व होता है उससे वो क्रेडिट क्रिएशन करती है, राइट? सो व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? इट इज सिंपली an expansion of the deposits, right? So what banks do is it expands their demand deposits as a multiple of their cash reserves, right? Because demand deposit serves as the principal medium of exchange. Matlab this is the medium, right? This is the medium through which there are two kinds of M1 में आप दो component लेते हैं. One is C, currency, right? Currency and coins plus demand deposits, है ना? Currency is being regulated by the government institution, right? Monetary authority देखती है उसको. And this demand deposit that is in the hands of these commercial banks, right? These banks will look after this demand deposits. ये कब होता है? When they advance loans or purchase securities or lend to the government, right? So then this creation of demand the deposits happens, right? Not demand deposits. ये demand deposit तो आपका primary deposits हो गया, उसकी वजह से बाकी जो extra deposits create होते हैं that is the process of credit creation, right? Now what are the bases of credit creation? Basics of credit creation. अब credit creation को समझने से पहले we have to learn certain concepts related to that is primary deposits, then derivative or secondary deposits, then what is cash reserve ratio and credit multiplier, right? What is a primary deposit? Suppose I have 1000 rupee with me and that is the extra money lying with me, so I'll go to a bank, ठीक है? SBI के ब्रांच में मैं एक चली गई जहां पे मेरा अकाउंट है, वहां मैंने अपना 1000 रुपए जमा कर दिया, राइट? So that money will become the primary deposit of the bank. So how primary deposits is formed? When a customer comes to the bank and deposits some cash, right, in the form of currency or in the form of a check, right? So that deposit will become the primary deposits of the banks, right? अब ये जो मनी है that customer can withdraw is free to withdraw any amount of it or whenever he wants or she wants, and that, right, through banks they can withdraw it, right? So इसी को primary deposits बोलते हैं, right? So it is out of these primary deposits that the banks makes loans or advances to its customers, right?
एंड कस्टमर्स के द्वारा ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। कस्टमर्स के पास एक्स्ट्रा मनी था जिसको उन्होंने बैंक के पास रखा, जमा किया, राइट। नाउ रोल ऑफ द बैंक हियर इज पैसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, इसीलिए इसको पैसिव डिपॉजिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई इनिशिएशन बैंक की तरफ से नहीं है, ये इनिशिएशन है कस्टमर्स की तरफ से। सो दैट इज व्हाई बैंक के बिहाफ पे दिस इज अ पैसिव डिपॉजिट, बिकॉज बैंक हैज नो रोल टू प्ले in these kinds of deposits. That is why it is known as the passive deposit, right? So another term or the concept is derivative deposits. Now what are these secondary or derivative deposits? Now when deposits will come to the bank, right, the primary deposits, now after keeping certain amount of money in the form of reserves, the banks will advance loans to another customers who needs the money, right, who are in requirement of that loan amount, that to them the bank will advance some loans, right, through those deposits, through those primary deposits after keeping a reserve amount, right. So or दूसरा, it can grant loan or purchase assets, right, or securities, so that in that way another kind of deposits are formed. That deposits is known as derivative deposit. जब हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस देखेंगे, so वो क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में ये पता चल जाएगा, right. So derivative deposits are formed out of these primary deposits, right. So इसी से इन्हीं derivative deposits का जो creation होता है, that is known as the credit creation, right. Derivative deposits को अब active deposits क्यों बोलते हैं? क्योंकि now banks play an active role in the creation of such deposits. That is the reason these deposits are known as the active deposits, right. So credit creation means the multiplication of bank deposits. So credit creation may be defined also as the expansion of bank deposits through the process of more loans and advances and investment. So that is the process of credit creation. Then the third concept is cash reserve ratio, right. Now banks know through the experience that जितने भी depositors हैं, they will not withdraw all of their deposits at the same time, right. They know by the experience कि सभी लोग एक साथ पैसे withdraw नहीं करेंगे और सारा पैसे एक साथ नहीं निकालेंगे. So इसीलिए ये लोग कुछ amount, कुछ fraction of total deposit अपने पास रख देते हैं in the form of reserves, right. प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन अपने पास रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और बाकी बचे हुए डिपॉजिट से वो लोग लैंडिंग करते हैं, उस एक्सेस डिपॉजिट्स को वो लोग लैंड करते हैं, आगे लोन एडवांसिंग करते हैं या सिक्योरिटी परचेज करते हैं. सो इन दैट फॉर्म डेरिवेटिव डिपॉजिट बनते हैं. सो दैट कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ दैट टोटल डिपॉजिट जो कि बैंक्स को अपने पास कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, right. So that is the CRR, which is again regulated or directed by the central bank of or the monetary authority of any economy. ये वो रेगुलेट करती है. So ये CRR जो है बैंक्स अपने पास लिक्विड फॉर्म में इसलिए रखती है ताकि डिपॉजिटर्स जो हैं, कुछ डिपॉजिटर्स तो आएंगे, पैसे विड्रॉ करेंगे जब उनकी ज़रूरत है, सो इसलिए वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए CRR रखा जाता है और ये रेगुलेट किया जाता है थ्रू द सेंट्रल बैंक, राइट. सो अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ भाग जो ये रखते हैं, दैट इज द CRR, राइट. ऑलराइट, देन अनदर कॉन्सेप्ट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर. नाउ व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर? Now this refers to the ratio of increase in total deposits to increase in primary deposits. That is, change in total deposits to change in primary deposits. Primary deposits में परिवर्तन से जो total deposit में परिवर्तन आया, primary plus derivative deposits में जो परिवर्तन आया, that ratio is your credit multiplier, and it is the inverse of the cash reserve ratio. So if we want to know the formula for credit multiplier or the equation, so credit multiplier will be equal to 1 upon R or CRR, जो भी बोल लीजिए, या reserve ratio बोल लीजिए, small r, 1 upon small r, right. So that is the credit multiplier. So it is the
इट इज द रेशियो टू क्या बोलेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व, राइट, इनवर्स ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व. सो जितना रिक्वायर्ड रिजर्व की वैल्यू अधिक होगी, राइट, ये CRR की वैल्यू अधिक होगी, उतना क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू कम हो जाएगा. जितना ये CRR की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा. जितना CRR कम होगा, उतना क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक आएगी, तो उतना क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स अधिक होगा. क्रेडिट मल्टीप्लायर will has a positive relation with the deposit creation, right? That means expansion of deposit ज्यादा होगा जब ये मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी, right? So credit expansion in the banking system is influenced by the credit multiplier, and it is the reciprocal of required reserve ratio, that is 1 by R, right? So suppose this required ratio is 20%, so credit multiplier will be 1 upon 0.20, 20 upon 100 will be 0.20 or 20 upon 100. So 100 ऊपर चला गया, divided by 20 will give you the value of 5. The credit value multiplier will be 5. So that means primary deposit 1000 का हुआ, 1000 multiplied by this credit multiplier, that is value 5, will give you 5000 का deposit creation or credit expansion, right? Credit creation. So that is how credit multiplier influences the credit creation power of banks. Now, what are the assumptions we'll take for this credit creation? We are assuming that all the depositors will not withdraw their funds at one and the same time, right? We are assuming कि सारे depositors एक साथ पैसे निकालने नहीं आएंगे. दूसरा, बैंक्स जो है कैश के फॉर्म में पेमेंट नहीं करेगी, right? The amount of credit, that means जो लोन सैंक्शन हुआ है वो कैश के फॉर्म में नहीं करेगी, बल्कि बैंक उसको उसके नाम पे एक डिपॉजिट क्रिएट करेगी. उस डिपॉजिट में बैंक वो पैसे डालेगी और वहां से वो विड्रॉ करेगा, राइट? दूसरा आदमी जिसको वो लोन दिया गया है, सो उसके नाम पे एक डिपॉजिट खोला जाएगा, उसमें वो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे उस डिपॉजिट में, वहां से वो पैसे विड्रॉ करेगा इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ through he can withdraw it through checks, right, or through क्या बोलेंगे, or he can withdraw it in the form of cash as well or through check, right? So बैंक जो सैंक्शन कर रही है लोन, वो उसके लिए वो एक डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करेगी, उसका कैश के फॉर्म में नहीं देगी. देन बैंक्स हैव टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? हर एक बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करेगी अपने पास, that is liquidity of cash. Then banks create credit on the basis of excess reserve. अब जो वो कैश रिजर्व रेशियो रखने के बाद जो बच गया from that primary deposit, that is the excess reserve, वहां से banks credit creation करेंगे. There is no change in the credit control policy of central bank. Central bank की policy जैसी है, cheap credit policy है तो वैसी ही रहेगी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी है तो वैसे ही रहेगी. चीप क्रेडिट पॉलिसी मतलब CRR, SLR ये सारे घटा दिए, राइट? दैट मीन्स बैंक चाहती, सेंट्रल बैंक चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े इकोनॉमी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, सो सब कुछ घटा दिया, तो सेंट्रल बैंक क्या चाह रही है कि मनी सप्लाई बढ़े. डियर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये सारे रेट्स और रेशियोज बढ़ा दिए, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक चाहती है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, दैट इज डियर मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? ऑलराइट, सो वो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा सेंट्रल बैंक के. देन पेमेंट्स, जो भी ट्रेड और ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके पेमेंट्स जो है लोग चेक के माध्यम से कर रहे हैं, ये भी हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं, राइट? ताकि वो डिपॉजिट क्रिएशन और मल्टीप्लिकेशन होते रहे डिपॉजिट्स का, तो वो चेक के द्वारा कर रहे हैं, राइट? मतलब कि चेक होगा तो चेक से कैश करने के लिए बैंक ही आना पड़ेगा लोगों को, राइट? सो इसीलिए जो भी ट्रेड और ट्रांजेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि वो चेक के द्वारा पेमेंट्स किए जा रहे हैं उनके. देन जो सिक्योरिटी रखी जाएगी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोन्स, जो सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी बैंक्स के द्वारा, या कोलेटरल बोलते हैं उसको, इज फ्री फ्रॉम रिस्क. मतलब वो रिस्की ना हो. सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी रख दिया और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, राइट? तो वो बैंक्स को कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपने सुना होगा न्यूज में बहुत ज्यादा, NPA जिसको बोलते हैं, तो NPA बढ़ता जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. जितना ये NPA ज्यादा होते जाता है उतना बैंक्स की जो
बैंक्स पे कॉन्फिडेंस लोगों का घटता जाता है, जितना ये एनपीए बढ़ता जाएगा बैंक्स का, राइट। सो इसीलिए जरूरी है वो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सो उसी के लिए जरूरी है कि जो ये कोलेटरल सिक्योरिटीज बैंक के पास हो वो risky ना हो, it should be free from risk, right? Then normal conditions should prevail in the economy, मतलब industrial conditions should be normal, environmental मतलब industrial and economic conditions जो हैं वो सारी normal हो, right? Normal situation हो. So on the basis of these assumptions, let's see how credit creation is being done. Now we'll study it in two parts. One is the credit creation by a single bank, जहाँ पे एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में, वी आर अज्यूमिंग कि एक ही बैंक है, दैट इज जैसे कि एक हमने एक यूनिट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सो वी आर अज्यूमिंग कि एक ही बैंक है जो कि काम कर रही है पूरी इकोनॉमी में. फिर दूसरा हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय द मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं एक साथ, कमर्शियल बैंक्स जो कि क्रेडिट क्रिएशन कर रही हैं. सो लेट्स सी क्रेडिट क्रिएशन बाय अ सिंगल बैंक, राइट. We are assuming here that जो कैश रिजर्व रेशो है वो यहाँ पे 20% है. बैंक का जो वो सिंगल बैंक है उसका जो कैश रिजर्व रेशो उसके लिए मेंशन की गई है दैट इज 20%. दैट मीन्स उसको प्राइमरी डिपॉजिट का 20% हैज टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, राइट. सो लेट्स सपोज कि एक पर्सन आया उस ए बैंक के पास जो कि एक सिंगल बैंक है, सपोज वो वहां पे 1000 रुपीज का पेमेंट डिपॉजिट करता है. दैट विल बिकम द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक, राइट, और द इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट जो बैंक के पास आया, राइट, उस एक पर्सन के द्वारा. नाउ इसमें से 200 रुपए उसको कैश रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करने होंगे, क्योंकि 20% ऑफ दिस 1000 विल बी 200, राइट. सो वो कैश रिजर्व बैंक ने मेंटेन किया. नाउ दिस इज द एक्सेस रिजर्व विद द बैंक, एंड बैंक न्यू बाय द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स वर्किंग कि ये आदमी मतलब अभी नहीं आएगा या एक साथ सब लोग पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे, तो मैं जो है ये एक्सेस मनी को मैं अब लेंडिंग कर सकता हूँ. मैंने रिक्वायर्ड रिजर्व जो था वो रख लिया, अब ये एक्स्ट्रा मनी है मेरे पास, इसको मैं किसी को लोन कर सकता हूँ. अच्छा, अ पर्सन बी विल कम, राइट, हु रिक्वायर्स द मनी, राइट, उसको पैसों की जरूरत है. तो बैंक ने उसके नाम पे एक जो है डिपॉजिट ये लोन अमाउंट उसको दे दिया, राइट. नाउ जो पर्सन है, ये जो 800 रुपए लोन क्रिएशन हुआ, क्रेडिट क्रिएशन हुआ, अब ये इसने किसी को इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, सपोज उसको ये 800 रुपए किसी को पे करने थे, किसी ट्रेडर को पे करने थे, वो ट्रेडर को उसने वो चेक इशू कर दिया, राइट. अब क्या हुआ, उस बी पर्सन जो था वो आया यहाँ पे और उसने यहाँ पे क्या किया, अपना डिपॉजिट इस बैंक में डाल दिया, राइट, या वो चेक यहाँ पे डाल दिया. वो यहाँ पे एक और प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट हो गया बैंक के पास. देखिए ये इसी 1000 रुपए से हो रहा है, राइट. सो अब ये 800 का बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट फिर से आ गया. ना इसका 20% बैंक विल कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व. अब ये 160 रुपए इज द 20% ऑफ दिस 800. The remaining amount, that is 640, will be the extra money with the bank, right. Now a person D requires or somebody requires this 640 ka amount, and again he pays it to somebody else जहाँ से जिसको वो owe करता था, right, that amount of money 640 का. So वो पर्सन सी के पास आया और पर्सन सी के पास यहाँ पे वो पर्सन सी ने फिर यहाँ पे उसको चेक दे दिया, तो वो अगेन आया इस बैंक में, उसने अपना ये जमा किया वो चेक, अगेन एक प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास क्रिएट हो गया. नाउ अगेन इसका 20% इज 128, राइट. सो दैट बैंक हैज टू कीप इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट देन अगेन इट विल डू और गिव इन द फॉर्म ऑफ loans, right. So this is how ये process जो है चलते रहेगा, क्योंकि CRR आपका 20% है, so 1/20
20, right, percent, 20% will give you the value of 5. So ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि टोटल डिपॉजिट का अमाउंट बढ़ के 5,000 नहीं हो जाता है. दैट मीन्स कैश रिजर्व विल फॉर्म टोटल, जो लास्ट में फाइनल चेंज जो आएगा दैट इज 1000, और क्रेडिट क्रिएशन होगा 4000 का, एंड टोटल डिपॉजिट्स विद द बैंक विल फॉर्म 5000. It will amount 5,000, right? So this is how a single bank credit creation इस तरह से इस process में करती है, right? Now ये credit creation in a multiple banking system, right? Now in real world we find कि एक बैंक काम नहीं कर रहा होता इकोनॉमी में. There are so many banks that those are working together, right? और जब ये जितना ये सिंगल बैंक से क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में उससे कई गुना अधिक जो है प्राइमरी डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, राइट? लेट्स सी कि कैसे मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन होता है, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक is the process of multiple expansion of credit, right? So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि we are taking an example कि यहाँ पे 3 तरह के बैंक हैं सपोज, ठीक है? SBI बैंक, बड़ौदा बैंक और एक्सिस बैंक है, राइट? ऑल आर कमर्शियल बैंक्स, और इनका जो रिक्वायर्ड रिजर्व रखना है वो अगेन 20% ही है. और एक नया डिपॉजिट जो आया इनिशियल जो प्राइमरी डिपॉजिट आया वो SBI बैंक के पास आया इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स. ये 1000 रुपीज का आया, राइट? इट अमाउंट्स 1000 रुपीज. सो नाउ हाउ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक इज डन, राइट? अब ये है बैलेंस शीट ऑफ SBI. जब बैंक्स जो है अपना जो अकाउंट है वो डबल एंट्री सिस्टम से करती है, दैट मीन्स ऑन वन साइड देयर इज लायबिलिटी एंड अनदर साइड देयर इज असेट्स, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होती है, राइट हैंड साइड में असेट्स होते हैं बैंक्स के, राइट? सो दैट इज अ बैलेंस शीट. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब मैं जाके बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ तो है तो वो मेरे पैसे, दैट इज वाई वो लायबिलिटी होती है बैंक की, राइट? दैट इज अ लायबिलिटी टू द बैंक. जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगी वो लायबिलिटी होती है, जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होती है वो उसके असेट्स होती हैं, राइट? वो उसके असेट बन जाती हैं. सो सपोज अ पर्सन डिपॉजिट्स 1000 कैश इन SBI बैंक, राइट? ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया. As a result, deposit of SBI bank increases by 1000 and cash also increases by ₹1000, right? अच्छा, अब इसकी वजह से इसके पास जो पैसे आए 1000, right? Now out of this, it has to maintain this cash reserve that is 200, right? 200 maintain करना है, और excess reserve हो गया इसका 800, right? All right. Now under the double entry system जो 1000 रुपए है वो दोनों साइड शो किया हुआ है, देखा आपने, liability 1000 and 1000 his assets including the excess reserve and the required reserve, right? So moving further, now SBI bank gives a loan to Mr. X, right? And who uses this amount to pay off his creditors, मतलब X ने किसी Y से लिया होगा पैसे पहले, या उसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसी से खरीदे होंगे. कोई सपोज ये भी ट्रेडर है, इसने वाई दूसरे ट्रेडर्स मर्चेंट से अपना गुड्स एंड सर्विसेज लिया था, तो उसको पेमेंट करनी है, राइट? आफ्टर द लोन हैज बीन मेड, द अमाउंट्स आर विथड्रॉन बाय एक्स टू पे ऑफ हिज क्रेडिटर्स. द बैलेंस शीट ऑफ SBI कैसा होगा? ऐसा, राइट? ये क्या हुआ, पहले बैंक ने के पास 1000 प्राइमरी था डिपॉजिट, राइट? सो कैश रिसीव्ड वाज 1000, right? After keeping the 200 as the cash reserve, this 800 has been sanctioned to Mr. X, loan to Mr. X, right? वो डेरिवेटिव डिपॉजिट उसके नाम पे खोल दिया गया. आपने एक अजम्पशन आपने पढ़ा होगा कि बैंक जो है वो कैश के फॉर्म में लोन एडवांस नहीं करेगी, राइट? एक डिपॉजिट क्रिएशन करेगी. सो ये डेरिवेटिव डिपॉजिट यहाँ पे क्रिएट हुआ टू मिस्टर एक्स के अकाउंट पे. मिस्टर एक्स का एक अकाउंट खोला गया, उसमें ये पैसे जमा हुए, which will form the derivative demand deposits, right? Now this will go to Mr. X, right? After that Mr. X will
परचेज गुड्स ऑफ वैल्यू ₹800 फ्रॉम वाई, है ना, और उसको पे करता है इन द फॉर्म ऑफ सपोज कैश और चेक जो भी, और वाई का जो अकाउंट है वो बड़ौदा बैंक में है, राइट। वाई अपना ये अमाउंट ऑफ मनी जाके बड़ौदा बैंक में जमा कर देता है 800 रुपए का, राइट। अब बड़ौदा बैंक के पास क्या आ गया, एक प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ 800 रुपए का, 20% उसको भी कैश रिजर्व मेंटेन करना है जो कि 160 हो जाएगा, राइट। अब बड़ौदा बैंक इज नाउ फ्री टू लेंड द बैलेंस ऑफ 640 टू एनीवन, राइट। और सपोज ये इसने मिस्टर जेड को दे दिया, जो कि अगेन अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए ये अमाउंट को यूज करता है, राइट। सो बैलेंस शीट ऑफ बड़ौदा बैंक विल बी प्राइमरी डिपॉजिट 800, कैश रिसीव्ड, है ना 160, एक तो कैश रिजर्व, लोन कितना दिया जेड को 640 का, राइट। सो दिस इज हाउ ये आपका असेट एंड लायबिलिटी डबल एंट्री सिस्टम है, ये बड़ौदा बैंक का बैलेंस शीट, राइट। नाउ सपोज जेड परचेजेस गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹640, जिसको ये लोन मिला उसने 640 मिस्टर एस से लिया, राइट। और एस का जो अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक में, वो जाके ये 640 रुपीज एक्सिस बैंक में जमा कर देता है, और एक्सिस बैंक ये 20% इसका रख के बाकी का 512 रुपए किसी और मर्चेंट को फिर से लैंडिंग कर देता है, तो उसका बैलेंस शीट हो गया 640 का प्राइमरी डिपॉजिट एक्सिस बैंक में, कैश रिजर्व 128, लोन कितना दे दिया 512 का, और यहाँ पे एक लोन का डेरिवेटिव डिपॉजिट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इस 512, राइट, इन दी एक्सिस बैंक, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस मूव्स ऑन। और अगर हम बैंकिंग सिस्टम एज ए होल पोजीशन अगर हम देखें तो सपोज दिस इज एसबीआई बैंक, देन बड़ौदा बैंक, देन एक्सिस बैंक, देन XYZ बैंक, सारे आते गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1000 का डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट आया, 200 कैश रिजर्व रखा, 800 रुपए का डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट हुआ, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट से किसी का पेमेंट हुआ सपोज, और यहाँ पे बी बैंक में आया ये 800 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट, अगेन कैश रिजर्व, again derivative deposit of this much amount has been created by bank B now, right। again ये 640 किसी C पर्सन को गया, और वो C पर्सन का अकाउंट बैंक C में था, तो 640 का प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ क्रिएट हुआ, अगेन 20% रखा, और एंड दिस इज हाउ द वर्क विल मूव ऑन, द प्रोसेस विल मूव ऑन। और ये जो आगे बढ़ते बढ़ते टोटल डिपॉजिट आपका हो जाएगा कुल मिला के 5000, राइट। सो 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट will lead to a creation of total deposits of amount ₹5000 due to this credit multiplier, right, because 20% was the cash reserve ratio, so 1/20% will give you the value of 5, so we multiply this 1000 by 5 will get 5000. So this is how credit creation is being done, right. Coming to the limitations of credit creation, what are the limitations of credit creation? Cash reserve ratio. Now ये cash reserve ratio central banks जो है regulate और decide करती है। Higher the cash reserve ratio, lower will be the value of credit creation. Lower the cash reserve ratio, higher will be the power of bank to create credit, right। So ये CRR जितना अधिक होगा उतना बैंक credit creation कम कर पाती है, right। और अगर ये सपोज यहाँ पे 20% की बजाय यहाँ 1000 का जो प्राइमरी डिपॉजिट आया, यहाँ पे 10% होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो आपका 1/10% विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 10, सो दैट मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 है, तो 10 गुना से आपका पैसे यहाँ 5 गुना बढ़ा था 20% होने पे, वहां 10 गुना बढ़ता, और ये 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट विल क्रिएट और टोटल डिपॉजिट ऑफ 10,000। सो आप देख रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो कैसे इंपैक्ट कर रहा है आपकी क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की, राइट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट्स और प्राइमरी डिपॉजिट्स, जितना प्राइमरी डिपॉजिट्स अधिक होंगी ना उतना क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की अधिक होगी, जितना प्राइमरी डिपॉजिट्स कम आएंगी उतना बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया। सपोज ये 1000 की जगह 500 ही आता, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। तो 2500 रुपए का ही क्रेडिट क्रिएशन हो पाता, और अगर 1000 की बजाय 2000 होता वो प्राइमरी डिपॉजिट, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगेन विल बी 10,000, राइट। सो जितना प्राइमरी डिपॉजिट अधिक आएगा उतना क्रेडिट क्रिएशन
ज़्यादा होगा, जितना प्राइमरी डिपॉजिट्स कम होंगी और उसमें अमाउंट कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। देन बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं वहाँ की इकोनॉमी में लोगों की। बैंकिंग हैबिट्स डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इस क्रेडिट क्रिएशन की पावर को अधिक करने के लिए। जितना बैंक्स लोगों की आदत होगी मेकिंग पेमेंट्स थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट्स, है ना, और बैंक्स में अकाउंट खोलना, अपना आइडल कैश मनी जो है वहाँ घर पे नहीं रख के बैंक्स में जमा करना, उतना प्राइमरी डिपॉजिट लोगों का ज़्यादा होते जाएगा। सो जितना बैंकिंग हैबिट्स डेवलप्ड होगा और बैंक्स रिस्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे इस किसी भी इकोनॉमी में, उतना जो है ये क्रेडिट क्रिएशन पावर लोगों की अधिक, बैंक्स की अधिक होगी, राइट। फिर इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में लोगों की स्मॉल सेविंग्स अपने घरों में रह जाती हैं, या फिर एक्स्ट्रा सेविंग होती हैं तो हम लोग गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी खरीदने में ज़्यादा, हम लोग होर्डिंग करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हमारी सोसाइटी इस तरह की है। सो बैंकिंग हैबिट्स नहीं होती है तो वो पैसा आइडल पड़ा रहता है ना, सोना चांदी की जेवरात के रूप में पड़ा रहेगा या आइडल लॉकर में पड़ा रहेगा, जो कि वो यूटिलाइज इकोनॉमी में सर्कुलेट ही नहीं होगा, तो यूटिलाइज कैसे होगा, राइट। क्रेडिट क्रिएशन इस तरह से कम हो जाती है बैंक से। देन क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक कैसे है, डियर मॉनिटरी पॉलिसी है या चीप मॉनिटरी पॉलिसी है, वो मैंने पहले ही बता दिया। चीप मॉनिटरी पॉलिसी होगी तो क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की ज्यादा होगी, डियर मॉनिटरी पॉलिसी होगी तो सेंट्रल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन पावर भी कम हो जाएगी, राइट। दैट मीन CRR, SLR, ये जो भी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए टूल्स हैं सेंट्रल बैंक के पास, वो हथियार अगर वो उसके रेट्स बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, तो उतना क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स का कम हो जाएगा, राइट। देन अदर बैंक्स की पॉलिसी कैसी है, राइट। अब बहुत जरूरी है कि क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी जब सेंट्रल बैंक ने परस्यू किया हो तो उसके साथ बाकी बैंक्स भी जो है कोऑपरेट करें, राइट। बैंक्स शुड फंक्शन इन यूनिसन। सो उससे पावर क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन सभी बैंक्स का ज्यादा होगा। अगर एक दूसरे के कंपटीशन में करेंगी तो फिर ये क्रेडिट क्रिएशन की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। देन लीकेज इन सर्कुलेशन, सपोज मेरे को मैंने लोन लिया और मैंने वो पैसे उसी समय विड्रॉ करके किसी को कैश में पेमेंट कर दिया और वो तीसरे बंदे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बैंक में और उसने अपना पैसे फिर वैसे ही खर्च कर दिया, राइट। सो दैट इज लीकेज इन सर्कुलेशन। या एक और बात, सपोज मेरे को पेमेंट हुआ उस ट्रेडर से आफ्टर टेकिंग द लोन, ही हैज टुक द लोन एंड गिवन मी और पेड मी, और मैंने क्या किया उसमें से 500 रुपए खर्च कर दिया, 500 रुपए जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया, अगेन वो भी लीकेज हुआ, राइट। सो दैट इज लीकेज इन सर्कुलेशन, उससे क्रेडिट क्रिएशन की पावर अगेन बैंक्स की कम हो जाएगी। देन credit worthiness of borrowers, right. Credit worthiness depends upon the this nature of security, right. कैसा है, लोगों ने अपना जो सिक्योरिटी रखा है जिसके अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया है वो कैसा है, राइट। अगर रिस्क फ्री होगा, राइट, रिस्क फ्री होगा सिक्योरिटी, तो उतना ही क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की ज्यादा होगी। अगर वो रिस्की होगा, राइट, वो एनपीए को बढ़ाने वाला होगा, तो उतना ही क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की कम हो जाएगी, राइट। देन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस कैसी हैं, इफ इट इज नॉर्मल जो है, इफ सुटेबल टू द बैंकिंग, राइट, सो द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक्स विल बी मोर, राइट। अगर डिप्रेशन है सपोज, है ना, डिप्रेशन है तो देयर विल बी लिटिल डिमांड फॉर लोन्स, राइट। सो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोन्स की डिमांड कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन वैसे ही बैंक से कम हो जाएगा। अगर देयर इज अ बूम पीरियड और इन्फ्लेशन है तो देन अगेन द क्रेडिट क्रिएशन विल बी लार्ज, क्योंकि डिमांड फॉर द लोन और demand for lending will be more in that case, right. So commercial and industrial conditions इस तरह से influence करती है credit creation power of bank, right. So coming to the conclusion, we can say कि जो credit creation है banks के द्वारा, it is one of the most important function performed by the commercial banks, and this is the source from where they generate income for themselves or profit for themselves, right. Commercial banks का मुख्य जो agenda है that is to earn profit, right. So this is the process from where they generate this profit or income for themselves, right. So जितना reserve requirement ज़्यादा होगा सेंट्रल बैंक का, उतना क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की कम हो जाएगी, राइट। और जितना ही क्रेडिट क्रिएशन जो है, सॉरी, ये सेंट्रल बैंक की जो रिक्वायर्ड रिजर्व जो है अमाउंट कम होगा, उतना
क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक्स की बढ़ जाती है, राइट. सो दिस इज हाउ credit creation is being done. So the assignment for you is this, right? So this is your assignment. So write it down.